नमस्कार दोस्तों and welcome to SM Smart Profile Bank Nifty and Nifty Analysis for Monday 27th October 2025। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को यूज करके मार्केट की डायरेक्शन, एरियाज ऑफ अब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करके एक पॉसिबल ट्रेड डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टेल यू दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हम कोई ट्रेड एडवाइस नहीं देते हैं। प्लीज यूज दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब हमने आपको कल बताया था कि 20th अक्टूबर ये वाला प्रोफाइल के बाद ये एक क्लासिकल सेटअप था फॉर डाउन ट्रेंड और अ शॉर्ट टर्म पुल बैक टाइप ऑफ स्टफ। But on 23rd October, what happened was the market took support over here from a very important area which I had marked and went up, made a poor high, एक unfinished business छोड़ के market नीचे आके value area of 20th October के नीचे बंद हुआ है। I had very clearly said in my previous video that we will be selling, looking towards selling, and we will sell on rise. I may not be interested in buying over here. And if you see when the market opened, what happened? If we study this chart, let me split it for you. If we studied this chart, the market opened somewhere here, and then it tested the upper areas. It tested the upper areas. When after testing the upper areas, it did not find any buyers. So this area which we had marked as a high volume node of 20th October acted as a resistance and the market came down. Another very important thing that happened is that we got a small IB. When we get a small IB, the chances of a trend day are very, very high. So this is the small IB, right? A and B period combined together. So small IB. In the C period, we get a breakout, and you can see how the market goes further down to give us another unfinished business and a poor low. We got a very good trend day. The trend day was visible immediately after the completion of the IB. It was understood that today is going to be a good trend day, whether it is 2 IB or 3 IB, that one could only, wait and watch as the day passes. But a 3 IB day, which happens, not very often, ज़्यादा संभावना नहीं रहती है इसकी, बट ये अच्छा ट्रेंड डे हमें मिला। अब आज इस ट्रेंड डे के बाद क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन? 27th को क्या चांसेस हैं? देखो, पहले 90 मिनट्स की जो ट्रेड है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गोइंग टू बी कि मार्केट खुलती कहाँ है। The third most important factor is going to be how the sellers and buyers are going to react. If the market opens somewhere below this area, right, this area, and this acts as a rejection, there are very high chances of us not only correcting this poor low, but also coming to somewhere around 57,200. In my analysis of yesterday, I had said that 57,600 is a very probable target. Please listen to the videos carefully, make notes. You will find many things which are not told anywhere. आप उसको नोट कीजिए और आपको ट्रेडिंग जर्नी में काम आएगा। ये एक रिपीट करता हूँ, 3 IB डे जब भी होगा, फर्स्ट 90 मिनट्स ऑफ ट्रेड आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। वैल्यू एरिया ये फर्स्ट 90 मिनट्स में टूटना चाहिए, whether it breaks on the top or it breaks on the bottom, this is anybody's guess, but daily profile is negative. The higher time frames of weekly and monthly are negative. The rotation factor is negative. जो skew है, जो है वो bias है हमारा, वो थोड़ा नेगेटिव ही है।
बट बायर्स बाइंग भी हुई है. I have seen buyers coming in also. How these buyers are going to sustain? ये 57,500 एक पॉइंट रहता है जहाँ पे बायर्स अपने आप को सस्टेन करेंगे, या ये टूट के फिर नीचे 57,200 तक जाएगा. बट जहां भी जाएगा मार्केट, ऊपर टूटे या नीचे टूटे, इट देर आर 60% चांसेस कि मार्केट वापस आज के वैल्यू एरिया में आके क्लोज होगा. So the chances of a neutral day are very high. The chances of a neutral extreme day जो कहते हैं, जो एक साइड को ही बंद हो, वैल्यू एरिया में वापस ना आए, ऊपर भी जाए नीचे भी आए, और एक साइड पे ही बंद हो जाए, या ऊपर बंद हो जाए या फिर नीचे बंद हो जाए, उसको न्यूट्रल एक्सट्रीम डे कहते हैं. न्यूट्रल डे वो होगा जो ऊपर भी जाए नीचे भी जाए और वापस वैल्यू एरिया में आके बंद हो जाए. सो मेक दीज नोट्स, नोट डाउन दी पॉइंट्स, यू नो व्हाट अ न्यूट्रल डे इज. अब आपको ये भी पता लग गया न्यूट्रल एक्सट्रीम डे क्या होता है. आपको ये भी पता लग गया कि ए और बी जब स्मॉल आई बी हो तो ट्रेंड डे के चांसेस होते हैं, और 2 IB के चांसेस होते हैं, कभी कभी 3 IB भी मिल जाता है. सो कीप दिस इन माइंड, आगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आएगा. और इसको हमने ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे रिलेट किया, लेट्स हैव अ लुक फटाफट एंड सी व्हाट हैपेंस. ये मेरा एक ओपनिंग कैंडल थी. ये आप देखो, मैंने ये जीरो प्रिंट मार्क कर लिए थे, राइट. इस कैंडल का भी जीरो प्रिंट मार्क कर लिया था. ये कल का 320 कैंडल था, इसका भी जीरो प्रिंट मार्क कर लिया था, इसका भी जीरो प्रिंट मार्क कर लिया था. मेरे को था ये एरिया टूटे एंड देन वी गेट अ डायरेक्शन. कल के वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि यू नो इट इज सेल ऑन राइज. बाइंग के चांसेस थोड़े कम है, बायर्स विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड. मैंने बड़ी क्लियरली आपको बताया था. तो देखते हैं आज क्या हुआ फिर. मार्केट यहाँ पे अराउंड 25 30 35 मिनट्स, यू नो, इट केप्ट मूविंग एंड देन यू कैन सी स्ट्रेट अवे डाउन. ये जीरो प्रिंट्स में हमेशा मार्क कर लेता हूँ, लो वॉल्यूम एरियाज मार्क कर लेता हूँ, आपको भी करने चाहिए. और देखते हैं कि इधर वापस आता है. ये एक कैंडल थी, ये जहाँ से नीचे आया कि फिर ऊपर गया. यू नो, many of the positions were exited here, but then the balance positions could have been held on. The market again took, a rejection from here. Let's see where it went again. And we got such a beautiful day. यहाँ पे हमें दोस्तों, we have started seeing traps. यहाँ पे we have started seeing absorption. यहाँ पे we have started seeing some positivity coming into it. But again, over here in this candle, I don't feel very good, right? So let's see what happens on Monday. Do the buyers bring strength into it and break the volume area over here and go back here again and then take a rejection? Or do they, straight away, take a rejection from this area, यहाँ से reject होके वापस नीचे आके यहाँ पे कहीं settle down होते हैं before closing into the value area again? ये मंडे को ही पता लगेगा. अब साथ के साथ आपको थोड़ा निफ्टी का भी बताते हैं. निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी में भी ओपन टेस्ट ड्राइव ही हुआ है. ये भी एक रिजेक्शन एरिया ही था, राइट. यहाँ से रिजेक्ट होके स्प्लिट करता हूँ मैं इसको आपके लिए. यू कैन सी एक स्मॉल आई बी था. लेट मी चेक इट फॉर यू कि ये स्मॉल आई बी था कि मीडियम. नो, इट वाज ओके, इट वाज नॉट अ वेरी स्मॉल आई बी. ये यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे गया है. अगेन इट हैज टेकन, इट ऑल्सो गेव 3 IB टारगेट. 3 IB टारगेट कैसे माप लेते हैं, ये देखो ए और बी एरिया ये है, मैंने इसको माप लिया. अब इसको ये देखना है और यहाँ से मेरे को देखना है एक और एक्सटेंशन मिली कि नहीं मिली. we got so nearly 3 IB I got over here, right? अब ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया है. तो इसका देखते हैं मार्केट कहाँ खुलती है, कैसे खुलती है, क्या बायर्स की स्ट्रेंथ आती है, वो ऑर्डर फ्लो से पता लगेगा. या तो हम इस पुअर लो को करेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके वापस वैल्यू में जाएंगे, या फिर अगर हम ऊपर खुलते हैं तो देन वी मे गो सी एन अप अगेन बिफोर कमिंग डाउन.
but there are chances of us closing in the value area अगेन। तो एक न्यूट्रल एक्सट्रीम डे या न्यूट्रल डे बनने के हाई चांसेस होते हैं। मैं आपको ऑर्डर फ्लो इसका भी दिखा देता हूँ निफ्टी का। काफ़ी लोग निफ्टी में इंटरेस्टेड रहते हैं, बट द टाइप ऑफ मोमेंटम जो बैंक निफ्टी देता है वो निफ्टी नहीं देता है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, यस। अब आप देखो कितने जीरो प्रिंट एरियाज हैं। ये जीरो प्रिंट एरियाज मार्क कर लेने चाहिए, बट टॉप ऑफ द कैंडल ने कुछ नहीं बताया। ये लो पे भी जीरो प्रिंट एरियाज आ गए, तो इन दो कैंडल से कुछ खास तो मुझे नहीं पता लगा कि मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर। हाँ, मन में ये था कि मैं सेल ऑन राइज करूंगा, सीइंग द प्रोफाइल ऑफ 23 अक्टूबर। अब मेरे को सिर्फ ये देखना था कि मेरे को एंट्रीज कहाँ लेनी है। अगर आप ये देखें कहाँ पे एंट्री अच्छी बनती है, ये देखो एक जीरो प्रिंट एरिया आया, इसको मैंने मार्क किया। ये वापस वीवैप से नीचे आके ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, एंड देन यू कैन सी व्हाट हैपेंड। जीरो प्रिंट एरियाज, लो वॉल्यूम एरियाज शुड ऑलवेज बी मार्क्ड एंड केप्ट। इसको हमको यहाँ तक ले जाना चाहिए था। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। डज द मार्केट टेक रिजेक्शन फ्रॉम एयर? यहाँ देखो मार्केट आती है, इधर से रिजेक्शन लेती है, एक नेगेटिव कैंडल दोबारा से बनती है, एंड वी रियली गो डाउन। अब ये एरिया भी मैंने मार्क कर लिया है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। फर्दर डाउनफॉल के लिए ये एरिया टूटना जरूरी है। इफ दिस एरिया ब्रेक्स, I think we should be touching somewhere around 25,650, 600, 25,500. We'll see in the on 27th when the market opens. ये आज हमारी एनालिसिस थी, और आपको थोड़ा सा मैं ये वाले चार्ट्स भी समझा देता हूँ। आप इसकी इफ़ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ये मैंने वॉल्यूम एरियाज थोड़े से बनाए हुए हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, जहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। मंडे को देखेंगे कि ये एरियाज कैसे एक्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का 5 मिनट्स का चार्ट है, और ये जो है ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। तो आप दोनों का स्नैपशॉट ले लीजिए, और मंडे को देखते हैं कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। आपके लिए मैंने एक स्पॉट के चार्ट्स भी बनाए हुए हैं। स्पॉट के चार्ट्स ये हैं, इसको भी आप यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, मार्क द एरियाज। अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये मूविंग एवरेजेस मैंने कौन सी लगाई हुई हैं, तो ये मूविंग एवरेज एक 15 की है, और एक मूविंग एवरेज 60 की है। ये 15 है, ये 60 है। तो यहाँ पे भी वही है, 15 और 60 का मूविंग एवरेज है। ये मेरे को बहुत यूजफुल लगता है, राइट? सो दिस इज आवर एनालिसिस फॉर टुडे। लेट्स सी यू ऑन मंडे। मार्केट बंद होने के बाद we'll make a you know analysis and come to you, and we will also try मंडे को कि आपको मार्केट में लाइव आए। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो वो ये वीडियो जब देखें, तो वी मे बी लाइव ऑन मंडे फॉर सम टाइम। कीप अ लुकआउट for the subscribe to the channel and keep a lookout. You will get a notification. Thank you very much, and trade safely, trade wisely. Before calculating your profits, please take care of your risks. Always be aware of your risks before your profits. Thank you very much. Bye bye.